students, good morning. कैसे हैं आप? Hope all of you are fine. Today we are going to start the decimal representation of a rational number. In last video we discussed that how we will divide a given rational number by another rational number. So, rational number means a number which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q both are integer and Q is not equals to 0, then P upon Q or this numerator upon denominator format is known as a rational number. Now this rational number may be in two form. If we divide the P by Q, then P may be divided completely, that is, in this case remainder will be 0. So what is the possibility? If we divide P by Q, then P may divide completely. In this case remainder will be 0. So first case first, when we divide P by Q, then let us suppose capital Q is the quotient and remainder here R is equals to 0. Remainder may be 0. Then we will say that Q is divided by, this P is divided by Q completely and remainder is 0. Then we will say that this is terminating number. Terminating means remainder is 0. Second case second, when P is divided by Q and let us suppose capital Q time it is divided and here remainder is remains something, any number R, means and where R is less than Q, then this is known as non-terminating decimal number. So here decimal representation of a rational number means any rational number P upon Q is given and we have to divide the P by Q. So what will be the process of division of a rational number in decimal representation? So we will see this. So let us take some example. Let us suppose we have given a rational number 5 upon 8 and if we have to represent this number in decimal form, then simply we have to divide the 5 by 8. So here 5 cannot be divided by 8. So if any number is not divisible, then first we will put a decimal and against the decimal we will take 1 0. Now what is the dividend? Dividend is 50. So speak the 8 table of 8. 8 6 48. Remainder is 2. And against this decimal we can put 1 0. So 8 2 16. Again remainder will be 4. And against this decimal we can take 1 0. 8 5 40. Now here see remainder is 0. So 5 upon 8 can be expressed as decimal 625. But what we are observing here that if 5 is divided by 8, then the quotient is in decimal number and this is divisible up to 3 decimal number, that is after decimal first number is 6, then 2 and then 8, means after a decimal 3 places it can be divided and remainder is 0. So this 5 upon 8
is a rational number and its decimal representation is 0.625, but this decimal representation is terminating. Terminating means its division is finished after finite number of division. So how many times we have divided? 1, 2 and 3. After 3 times division, its division is absolutely finished, or at the third step we are getting remainder as 0, means now further this division is not possible. So after finite number of time division, if division is terminated or remainder is 0, same thing. Terminated means remainder will be 0. So further division is not possible. So such rational number are known as terminating decimal. So what is the name of this decimal? Terminating decimal. Terminating decimal. So hope it is clear. Now let us take one more example. एक और अपन example लेते हैं. Let us suppose if we have divide 1/8, let us suppose 1/8 be any rational number, and if we have to represent this 1/8 in decimal form, then how we will represent? We will divide this 1 by 8. So 1 cannot be divided by 8. So first of all, what we will put? We will put one decimal here, and against one decimal we will take 1 0. Now 8 ones are 8. What will be the remainder? 2. Again 2 is not divisible by 8. So against this decimal 1 0 we will take. Still if it is not divisible, then we will put here 1 0, and against that 0 we will take 1 0. But ये तो division हो रहा है. So 8 2 जा 16. Again what is the remainder? Remainder is your 4. Against this decimal 1 0 we can take. Okay. Now what is this? 40. 40 is divisible by 8. How many times? 8 5s are 40. But see here remainder is 0. So 1/8 in decimal representation, decimal 125. Here also after complete 3 time division, the remainder is 0. Or after finite number of times, that is 3 times if we divide 1 by 8, then remainder is 0. So this 0 decimal 125 is also a terminating decimal. क्या है? Terminating decimal. So this time, if we have given any rational number, then the rational number can be represented as a decimal form. Okay. Now we will see the exercise 3. Next exercise is 3G. Question number first. Express each of the following rational number as a decimal. So question number first, A part is question number first. Part A is 3/20. What we have to do? We have to divide 3 by 20. So 3 cannot be divided directly by 20. So what we will do? We will use division format. Here see. Against decimal 1 0. Now dividend is greater than division. So 20 ones are 20. What will remainder? 10. But 10 cannot be divided by the 20. तो अगेंस्ट दिस डेसिमल, ये जो अपन ने डेसिमल रखा उसके अगेंस्ट एक 0 तो अपन ले सकते हैं. फिर 25 जा 100. 20 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100. और यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया? 0. जैसे ही रिमाइंडर 0, डिवीजन विल बी फिनिश. तो 3/20 is equals to decimal 15. How many times we have divided? 2 times. What is 2? 2 is a finite number.
So in given rational number, if the numerator is divisible by denominator in decimal form after a finite number, then such decimal representation is known as terminating decimal. So this is terminating decimal. Now let us see B part. B part is what we have to do, divide 11 by minus 16. So 11 upon minus 16 equals to minus 11 upon 16 equal to minus 11 upon 16. बच्चों ध्यान से देखिए, जब कोई भी रेशनल नंबर गिवन है अपने को, उसका न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है या कंप्लीट नेगेटिव है, नंबर विल बी ऑलवेज नेगेटिव. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 11 बाय 16 एंड नेगेटिव, सो क्वोशिएंट विल बी नेगेटिव. देखिए 11 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 16, सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेसिमल पुट अप करेंगे और यहां पुट अप कर देंगे 0. नाउ सी दिस इज 110. ठीक है, 110 को कितने बार डिवाइड करेंगे, 16 6 जा 16 6 जा 16 की टेबल को अगर अपन 6 बार बोलेंगे तो 96 आएगा. ठीक है, 110 में 96 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14. 14 अगेन कैन नॉट बी डिवाइडेड, सो डेसिमल के अगेंस्ट एक 0. अब 16 की टेबल को कितने बार डिवाइड करेंगे, अगेन अपन 140 है, 140 है तो कितने बार डिवाइड होगा वापस, देखो 16 8 जा 16 9 जा 144. ओके, 16 8 जा तो यहां से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा कितना होता है 48. 4 8 and 4 12 128. 16 8 जा कितना होगा 128. 140 में से 128 माइनस करेंगे कितना बचेगा 20. अगेन अगेंस्ट दिस डेसिमल 10 वी कैन पुट. अब देखिए 120 फिर 16 से कितने बार डिवाइड होगा 16 7 जा, क्योंकि 8 बार तो कितना था 128 था, तो 16 7 जा कितना होगा 16 7 जा कितना होता है 112. तो 112 यहां पुट अप करेंगे सॉरी 112 अगर अपन माइनस करेंगे 112 अगर अपन माइनस करते हैं 120 में तो कितना बचेगा 80 रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, अगेंस्ट दिस डेसिमल या 0 पुट अप कर देंगे तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा 16 5 जा 80. 80 माइनस 80 इट विल बी 0. ओके, तो ये कितना हो गया आपका, देखिए 120 में से 112 गया 80 में अपन ने क्या कर दिया 8 बचा 8 अगेंस्ट टू डेसिमल 0 पुट अप किया 80, फिर 5 टाइम डिवाइड हो गया. सो दिस minus 11 upon 16 will be minus of decimal 6875. So this is the decimal representation of this rational number, minus 11 upon 16 or 11 upon minus 16 or minus of 11 by 16. So let us see next question. Question number 3 is divide 2 write 21 upon 40. C part is 2 write 21 upon 40. देखिए मिक्स फ्रैक्शन है. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको 40 will be multiply by 2. 40 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और मल्टीप्लिकेशन जो आता है उसमें कितना ऐड कर देते हैं 21 डिवाइडेड बाय 40. तो 40 into 2 कितना होता है 80. 80 plus 21 कितना होगा 101 upon 40. तो अपने को क्या करना है बेटे 101 upon 40 को डिवाइड करना है. तो 40 से डिवाइड करेंगे किसको 101 को. ठीक है,
आप 40 की टेबल बोलिए, 40 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो कितना होगा, 40 2 जा 80, कितना बचेगा 21। अब 21 तो 40 से डिवाइड होता नहीं है, तो 2 के बाद अपन डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो ले लेंगे। अब 40 की टेबल को अगर अपन कितने बार बोलते हैं, 5 बार, कितने बार 5 बार, तो 5 4 जा 20 दैट इज 200, तो 5 बार बोला तो कितना हो गया 200। रिमाइंडर कितना बचेगा 10, डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो ले लेंगे तो 42 जा 80, 42 जा 80, कितना बचेगा 20, डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो फिर ले लें, फिर 40 से 200 को कितने बार डिवाइड करेंगे, 45 जा 200, तो ये 200, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इट मींस अपन ने कितने बार डिवाइड किया बेटे टोटल, देखो डेसिमल के पहले 1 बार, डेसिमल के बाद 3 बार, तो टोटल अपन ने कितने बार डिवाइड कर लिया 4 टाइम्स, तो 4 इज ए फाइनाइट नंबर, सो the given rational number 101 divided by 40 is 4 times divisible. Okay, after 4 finite time remainder is 0, so this 2 decimal 525, that is 101 upon 40 is 2 decimal 525. Now 2 decimal 525 is remainder is 0. How many times? After 4 times complete division, remainder is 0. That's why this is terminating decimal. तो ऐसा डिवीजन जिसमें आफ्टर फाइनाइट टाइम डिवीजन रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो सच decimal representation is known as terminating decimal. Okay, now let us see D part. Next D part देखते हैं, D में क्या है, represent 1 upon 125, 1 upon 125 in decimal representation. देखो बहुत ही प्यारा सवाल, किससे डिवाइड करना है 125 से, किसको 1 को। अब देखो ये तो 3 डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अपन डेसिमल पुट अप करेंगे, एक डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो ले लिया, फिर भी कितना बना 10, और 10 को किससे डिवाइड करना 125 से। तो जब तक डिविडेंड यहाँ का नंबर इस डिविजन के इक्वल या ग्रेटर नहीं होगा तब तक डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन ने एक डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो लिया, ओके, एक डेसिमल के अगेंस्ट कितना लिया एक जीरो, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट अप करेंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट अप करेंगे, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर भी अपन क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ रखेंगे और एक जीरो यहाँ रखेंगे। समझ में आया? तो देखो इस डेसिमल के अगेंस्ट ये जीरो, फिर भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने क्या किया, इस जीरो के अगेंस्ट एक जीरो लिख दिया, फिर भी ये 100 हुआ जबकि ये 125 है, तो फिर एक जीरो अपने को फिर से और पुट अप करने का पड़ेगा। तो क्वेश्चन में डेसिमल 00 यहां तक तो हो गया, तब जाकर के अपना यहां कितना आया 1000। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल, अपने पहली वाली एक्सरसाइज में भी देखा था कि 125 का कौन सा मल्टीपल 1000 होता है, 8th मल्टीपल। अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 इधर देखो, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 and 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 8 and 2 10। तो 125 का 8th मल्टीपल क्या है 1000 है। अब 1000 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 0, कितने बार डिवाइड हुआ ये 8, तो आंसर क्या आया डेसिमल 008। कौन सा आया डेसिमल 008। दिस इज वेरी क्यूट क्वेश्चन। सो दिस इज, अब इसमें भी क्या एक ही बार डिवाइड करने से क्या हो गया रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन ये प्रोसेस है डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो, फिर जीरो के अगेंस्ट जीरो, फिर जीरो के अगेंस्ट जीरो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। ऐसा क्यों किया आपने,
क्योंकि जब तक ये वाला नंबर जो है इस 125 से बड़ा नहीं होगा या बराबर नहीं होगा तब तक डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। चाहे रिमाइंडर 0 आए चाहे कोई नंबर आए, दैट विल डिपेंड अपॉन डिफरेंस। ओके, सो 125 किसके बराबर है? डेसिमल 008। समझ में आ गया? पक्का? सो दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? सो मूव नेक्स्ट question is -17 right e -17 right 3/64 -17 right 3/64। अब देखो इसको क्या करना है? डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले? तो देखिए माइनस तो बाहर ही रहेगा, 17 को मल्टीप्लाई करूंगा 64 से, प्लस उसमें 3 8 करूंगा और डिवाइड करूंगा 64 से। सबसे पहले देखो यहाँ 64 को मल्टीप्लाई करो किससे? 17 से। सबसे पहले से 7 4 जा कितना होगा? 28 का 8 कैरी 2, तो 6 7 जा 42 एंड 2 44। फिर 1 से तो 1 4 जा 4 एंड 1 6 जा 6। अब देखिए 8 as it is 4 and 4 8 and 6 and 4 10, तो ये कितना है? 1088। 1088 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1088 प्लस 3 1091 डिवाइडेड बाय 64। सो एक प्रकार से अपने को किसको डिवाइड करना है बेटे? डिवाइड करना अपने को माइनस ऑफ 1091 अपॉन 64 को। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? 1091 को डिवाइड करेंगे 64 से और फिर माइनस साइन लगा देंगे वहां पे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटे? देखो यहाँ देखो डिवीजन है 2 डिजिट नंबर और डिविडेंड है अपना 4 डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ 3 नंबर लूंगा 100, पहले 2 डिजिट लूंगा, 2 डिजिट छोटा है तो फिर 3 डिजिट ले लूंगा 109। अब 109 में 64 का कितने बार? 64 बन जा 64, माइनस करो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 10 में से 6 गया तो 4 45। अब अपन क्या ले लेंगे? यहां से 1 कैरी ले लेंगे। समझ में आ गया? तो 451 हो गया। अब 451 में किसको डिवाइड किससे डिवाइड करना? 64 से। तो देखो 64 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आए, या तो वो 451 के पास में आए या 451 से छोटा है। तो देखो 640 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं, किससे? 604 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, ठीक है। 8 6 जा 48 एंड 3 51। 8 से नहीं कर सकते हैं, ज्यादा हो गया, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42 एंड 2 44 4 48। तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है बेटे? 7 टाइम। 7 टाइम तो कितना हो रहा? 448। अब देखो माइनस करेंगे 451 अपॉन 448 तो कितना बच रहा? डिफरेंस 3 बच रहा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? अब 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता 64 से, मैं क्या पहले क्या करूंगा? पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट के अगेंस्ट कितना आ जाएगा? 0। फिर भी 30 फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पुट अप करूंगा 0, यहाँ पे भी पुट अप करूंगा 0। ये कितना हो गया? 300। अब 300 को मुझे डिवाइड करना 64 से, तो 64 से 300 कितने बार डिवाइड होगा? देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32, ये 320 हो जाता, मतलब 4 बार ही डिवाइड होगा। कितने बार? 4 बार। तो 4 4 जा 16 कैरी 1 एंड 6 4 जा 24 एंड 1
25 कितने बार डिवाइड हुआ 4 टाइम। तो ये कितना हो गया 300 में से माइनस करेंगे 256 तो कितना बचेगा ये बच जाएगा आपका 44 कितना बचेगा 44 डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो अपन ले लेंगे यहाँ पे फिर कितने बार डिवाइड होगा वापस देखिए फिर से डिवाइड हो जाएगा ये कितना फिर से 440 आप देखो 440 तो 440 कितने बार डिवाइड होगा 6 बार 64 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24 कैरी 2 6 6 जा 36 and 2 38 384 कितने बार डिवाइड हुआ 6 बार 384 तो ये हो गया आपका 384 माइनस करेंगे तो कितना होगा 40 प्लस 16 कितना होगा 56 रिमाइंडर विल बी 56 ठीक है फिर डेसिमल के अगेंस्ट एक जीरो यहां ले लें फिर कितने बार डिवाइड होगा आप देखिए फिर से कितने बार डिवाइड होगा अब डिवाइड हो जाएगा ये देखो कितने बार डिवाइड होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 को 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 512 कितने बार डिवाइड हुआ 8 बार तो 512 अब 512 को माइनस करेंगे 60 में 560 में से 512 तो कितना बचेगा 48 ठीक है और 48 में यहां लगा दीजिए डेसिमल के अगेंस्ट जीरो फिर से देखिए कितने बार डिवाइड होगा अब डिवाइड हो जाएगा ये अगेन 7 टाइम्स तो ऐसे आप डिवाइड करते रहेंगे और डिवीजन चलता रहेगा सो सच डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो यह आंसर क्या लिखेंगे equals to minus 17 decimal 0 4 6 and 8 so hope you like this video please like it and share it